Ajay ji, Assalamu alaikum. So today we'll start by learning technologies and innovation and how it helps people in raising their standard of living. So this is the component of chapter number 2, technology, innovation and development. अच्छा जी, तो let's start. So technology और innovation के बाद specialization की बारी आई. We know कि after the influence of or after technological innovation हमारे पास बम्पर प्रोडक्शन आ गई डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जिसके थ्रू लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया और वेज रेट भी अच्छा हो गया. सो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट फील्ड. सो स्पेशलाइजेशन मीन्स कि one person can do just one task or a few tasks or goal specifically. So specialization किन तीन reasons की वजह से हुई. First, learning by doing, और difference in ability और economies of skill. So learning by doing is जब हम कोई ये काम बार बार करते रहते हैं तो we learn कि जो हमारे उसके अंदर mistakes हैं हम उसको redo करके next time वो mistake नहीं करते. फिर उसके बाद हम और उसके expert हो जाते हैं, next time उससे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं. So what happens कि at the end we are specialized in some sort of activity. Just as take the example of different industry. Let's suppose कोई कारपेंटरिंग का काम सीख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बचपन से तो नहीं सीखा होता, आहिस्ता आहिस्ता करके they learn and they become an expert. Just take an example of a tailor or any other small example. Similarly, अगर इंडस्ट्रीज में हम जाएँ तो इंडस्ट्रीज में यही है कि अगर हम लेट्स सपोज नेशनल फूड की इंडस्ट्री उठा ले तो दे माइट हैव स्टार्टेड विद अ केचप, फिर उसके बाद उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आई नेशनल जेलीज की फॉर्म में, मामलेट्स की फॉर्म में, फिर उसके बाद उन्होंने कॉर्नफ्लोर और बहुत सी और फर्दर प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च करती हैं. सो दे लर्न बाय डूइंग एंड दे स्टार्टेड विद वन थिंग एंड देन दे लर्न ऑन कीप ऑन एंड दे हैव सेट अप द होल इंडस्ट्री. सो दे आर नाउ स्पेशलाइज्ड इन दोज प्रोडक्ट्स. So they learn by doing. The other thing is that there is a difference in ability. So दूसरी ये भी हो सकती है कि उनके पास कोई रिसोर्सेज इस तरह की हों, या उनके पास कैपिटल की अबंडेंसी हो, या उनका उनका टिल्ट ही उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ, उन्हीं चीज़ की तरफ हो जिसकी वजह से they specialized in that specific product. So they have that difference in ability from others. They know, let's suppose if just take the example of a national foods again. अगर हम उन्हीं को ले लें तो they have their own farms, let's suppose, और उनके farms को farming तो पहले से ही वो करते थे. Then they came to know about the idea कि let's preserve that fruit, so that उसके basis पे उन्होंने जैम वगैरह की preparation की and then they came up with this idea. क्योंकि उनकी ability different थी, उनके पास different resources थी, so that's why they specialized in that specific resource. Similarly हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अगर बात करें या डिफरेंट क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो हर जगह राइस नहीं होती, हर जगह व्हीट नहीं होती, हर जगह कॉटन नहीं होता. सो दैट दिस इज द डिफरेंस इन एबिलिटी. द एटमॉस्फेयर, इट्स द temperature, it's the environment that is providing the difference in ability of that the people of that area. So this is how people specialize in that specific thing. Third point is economies of scale. So when they are specialized in it or they are specializing in it, so their product, the raw material that they are having is cheaply available over there. So the product, the finished product that they are providing or giving it to the market, suppose cheap form में या नॉमिनल प्राइस की फॉर्म में, नॉमिनल प्राइसेस में वो ऑफ़र कर सकता है. जबकि आप और मैं अगर उसी प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमने ज़ीरो से रिसोर्सेज जमा करनी है, रॉ मटेरियल बाजार से ख़रीदना है, फिर हमने काम करना है. हो सकता है उसके पास वो रिसोर्स हो, दैट्स व्हाई ही स्पेशलाइज्ड in that specific material. So there are three reasons of specialization. एक है learning by doing, either they learn by doing it, or they have difference in ability of doing it, or they are producing that product at the economies of scale level. Now next, if we compare the comparative and absolute advantage, you have learned about that theory कि comparative advantage क्या है, absolute क्या है.
Comparative absolute advantage means being more productive in producing a good means having an absolute advantage. You are producing a product, but you are more productive in producing that product. And having a lower relative cost of producing that good means having a comparative advantage. Comparative advantage में ये है कि आप lower relative cost के ऊपर produce कर सकते हैं compared to the other. लेकिन absolute में ये है कि you can produce it more and more at that. Let's suppose take the example of two person, Gohar and Kamil. Gohar can produce 1250 apples or 50 tons of wheat. Kamil can produce 1000 of apples and 20 tons of wheat. ये हमारे पास और प्रोडक्शन के अंदर उसने सारा का सारा अपना 100% टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया. अगर वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जितना भी लेट्स सपोज उसके पास महीने के जितने भी दिन हैं, उसमें अगर यही प्रोडक्शन उसने करनी है या डेली के हिसाब से उसने प्रोड्यूस करना है, तो उसने इतना ही प्रोड्यूस करना है. चूँकि यहाँ पे एप्पल्स और वीट की बात आ रही है, सो मीन्स द सीजन, होल सीजन, उसकी हम बात करें कि होल सीजन के अंदर उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया. सो 1250 ऑफ एप्पल्स एंड 50 ऑफ वीट एंड 1000 ऑफ एप्पल एंड 20 ऑफ वीट. सो इसमें गौहर का क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है और कामिल का क्या कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज है. Now let's compare the comparative and absolute advantage of the two. So Gohar and Kamil have comparative advantage of 25 apples as well as 50 apples, whereas opportunity cost of Gohar for wheat is 0.04, then that is of 0.2. So अब क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें तो गौहर को comparative advantage, उसको absolute advantage ज़्यादा है in terms of wheat, और जबकि कामिल को एडवांटेज है कि वो ज़्यादा एप्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ wheat. यहाँ पे ये ज़्यादा wheat प्रोड्यूस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एप्पल. सो हाउ टू कैलकुलेट इट, वी नो, रिमेंबर आवर प्रीवियस स्लाइड कि हमारे पास गौहर की जो कैपेसिटी थी दैट इज़ 1 to 50 over 50 से कैलकुलेट किया हमने 25, और जबकि कामिल का था 1000 by 20, so we get 50. Similarly over here, just reverse this order, so 50 are 50 tons of wheat divided by apples कि कितने के बेसिस पे हो सकता है, और यहाँ पर 220 by 1000 हो जाएगा. So this is how we calculate. So they both have advantage, absolute advantage in Gohar has absolute advantage in terms of wheat, and Kamil has absolute advantage in terms of apple. They can produce more apples. So this is how we normally, एक टन को फॉरगो करेगा सो 50 एप्पल वो ले लेगा, और यहाँ पे ये एक एप्पल को फॉरगो करेगा तो 0.04 टन लेगा. जस्ट think it from that perspective. So comparing this, so it means that we have different absolute as well as comparative advantage. इसकी basis पे ये लोग further अपना action करेंगे. So यहाँ पर अगर हम देख लें तो self sufficiency and specialization की तरफ अब एक दफ़ा उनको पता चल गया है कि हम अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं. So Kamil has an absolute advantage in the production of wheat, and Gohar has the advantage in the production of apple. So what they will do is, अब उसने self sufficiency में इन्होंने क्या किया, in case of self sufficiency, Gohar will use 40% of his her time on apple production and 60% on tea. Self sufficiency mean उसने और कुछ नहीं करना, अपने ही अपनी production line enhance करनी है और अपने लिए ही produce करना है. Self sufficiency mean अपने लिए produce करना है. और कामिल ने 30% एप्पल के ऊपर लिया है और 70% इसने 3:7 के रेशो में डिवाइड कर दिया उसका टाइम. सो अगर वो सेल्फ सफिशिएंसी पे जाता है तो गौहर प्रोड्यूस करता है 500 एप्पल और 30 वीट, जबकि कामिल प्रोड्यूस करता है 314. सो टोटल अगर हम एप्पल्स डाल दें तो 500 + 300 इज़ 800, और वीट को अगर हम ऐड करें 30 + 14 इज़ 44. If we go with a specialization and we go with the specialization and trade, so specialization आएगी फिर obviously इसके end पे हमारे पास trade भी होगी. So specialization में we know कि गौहर का advantage है in the production of
इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, लेट्स सपोज उसने एडवांटेज ले लिया, वीट उसने प्रोड्यूस किया सबसे ज़्यादा, और जबकि कामिल ने प्रोड्यूस किया 1000 ऑफ एप्पल्स। सो गौहर जो है, गौहर प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई भी एप्पल प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन वीट की तरफ चला जाएगा क्योंकि वीट के अंदर उसके ऊपर इसका एडवांटेज ज़्यादा है instead of apples. So what they will do, he will not produce a single apple, but he will produce wheat. 500 इसकी अपनी डिमांड है और कंजम्पशन इसकी है 600 की। सो ये क्या करेगा कि 600 के 600 एप्पल जो है वो कहीं और से बाय कर लेगा, क्योंकि इसने कोई प्रोड्यूस किए नहीं, इसने 600 बाय कर लिए कामिल से। कामिल ने क्या किया, कामिल जो है उसने 1000 एप्पल प्रोड्यूस किए और उसकी अपनी डिमांड 400 की है। तो 400 उसने अपने लिए यूज़ किया और 600 उसने सेल कर दी है टू कामिल। सिमिलरली उसने वीट के प्रोड्यूस नहीं किया, अब उसने क्या किया, उसने बाय किया है वीट बाय कर लिया है फ्रॉम गौहर। सो गौहर से उसने वीट बाय कर लिया है 15 टन ऑफ वीट। सो अगर टोटल हम प्रोडक्शन देखें इसमें प्रोडक्ट्स की, तो 600 प्लस 400 इज़ 1000। टोटल एट द एंड हमारे पास प्रोडक्शन जो आई है वो 1000 एप्पल की है और वीट की प्रोडक्शन आ गई हमारे पास 50। सो इन बोथ केसेस वी आर अहेड ऑफ द इनिशियल सेल्फ सफिशिएंसी केस। सो यहाँ पर 200 एक्स्ट्रा हमने वीट प्रोड्यूस कर लिए और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लाइक 6 टन वीट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया। सो दिस इज द व्हाट वी कैन से advantage of doing specialization. This is how they are working. Now firm technology और production की अगर हम बात करें, so division of labor हमारे पास different components हैं या terminologies हैं जो आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। यहाँ पे उसकी short definitions बताई है so that we can come to know about different concepts. So division of labor, specialization in producing things either within a firm or across society is called division of labor. कि हमारे पास एज पर स्पेशलाइजेशन हम क्या करते हैं कि हम लेबर को डिवाइड कर देते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए इन्हांस हो जाती है। फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी is the process in which firm uses and converts set of inputs into output and they sell. So production technology को enhance करने के लिए what is that thing? It's actually the process जिसमें firm input और output को utilize करता है, convert करता है ताकि कोई एक specific product वो sell कर सके। Factor of production we know it's raw material, input of production is land, labor, capital, energy वगैरह, और प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एन इनपुट. सो आउटपुट इज एनी प्रोडक्ट दैट वी हैव प्रोड्यूस एंड इनपुट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट वी हैव यूटिलाइज्ड. सो इट्स अ रिलेशनशिप दैट टेल्स अस हाउ मच आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड गिवन द अमाउंट ऑफ इनपुट. हमारे पास फिक्स प्रोपोर्शन है. लेट्स सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फिक्स प्रोपोर्शन है टेक्नोलॉजी का. सो नंबर ऑफ मशीन्स हमारे पास गिवन है 3, 6, 9, 12 और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4. जबकि एनर्जी हमने यूज़ की 80, 160, यही सारे नंबर्स गिवन हैं. सो आउटपुट एट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इनपुट्स एनर्जी, ये इनपुट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये सारे के सारे इनपुट आ रहे हैं आपके पास. ये इनपुट्स हैं. सो इनपुट मशीन की फॉर्म में आ रहे हैं, वर्कर की आ रहे हैं और एनर्जी की आ रहे हैं. सो ये तीनों अगर हम ऐड करेंगे तो आउटपुट हमारे पास 50 आ रहा है इफ़ वन वर्कर इज एडेड. अभी तक हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन किया उसमें हम सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेते थे और आउटपुट हम ले लेते थे. इसमें अब हमने की और इनपुट्स भी ले लिए हैं, उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि इट्स कॉम्पोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. सिमिलरली इन केस ऑफ if we hire 2 workers we are using more machines. 3 के proportion से हमने उसमें के अंदर further add कर दिया है और 160 की हमने energy use की, 80 add कर दी ना, 80 plus 80 160 यहाँ पे भी डबल कर दिया, यहाँ पे भी डबल कर दिया और यहाँ पे भी डबल कर दिया. सो हमारे पास
आउटपुट भी डबल हो गई है। अब इधर हमने क्या किया है, यहाँ पे डबल नहीं किया, 3 और ऐड कर दिए हैं। इसी तरह वी मूव ऑन एंड वी गेट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट्स. So which technology you're suppose there are 5 possible technologies for producing 100 meters of cloth, which the firm will choose. यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कोल एंड टन्स दो इनपुट्स हैं, इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन है कि हमने एनर्जी का कौन सा सोर्स यूज़ किया है और हमने वर्कर्स कितने यूज़ किए हैं. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास 5 किस्म की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि 100 मीटर्स ऑफ cloth produce करें. So this is this blank line, this is actually showing the number of what we can say clothes area in which we are able to produce 100 meters of cloth. और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इनपुट्स का जिसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी. अगर हम ए बी कॉम्बिनेशन पे चेक करें तो हमारे पास 6:1 का रेशो है, यहाँ पे गिवन है 6:1 का रेशो आ रहा है इन केस ऑफ ए टेक्नोलॉजी हमारे पास जो भी ए लेवल की टेक्नोलॉजी है. देन वी हैव बी ओवर बी, हमारे पास जो रेशो आ रहा है सो हमारे पास अमाउंट ऑफ टन जो कंज्यूम कर रही है दैट इज़ 2, लेकिन वर्कर हम वहाँ पे 4 करिए. सो व्हाट डज दिस मीन, ए और बी को अगर हम कंपेयर करें सो इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और बी के ऊपर हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ पे 6:1 का रेशो है, यहाँ पे 1:2 यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 1:2 का रेशो. 1:2 टेक्नोलॉजी, 2 coals है, amount of coal produced and 4 है. Similarly going with C and D, C में भी हमारे पास 7:3 का और यहाँ पे 5:5 का 1:1 का रेशो आ रहा है. सो अगर हम इनको कंपेयर करें, लेट्स सपोज इन दो को कंपेयर कर लें, ए को बी के साथ कंपेयर करें, तो वी कम टू नो कि इस पार्ट के अंदर यहाँ पर अगर इन्होंने इस रेक्टेंगल के थ्रू इसको डिवाइड करने की कोशिश की है, अगर इन दोनों को लें तो ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट वी कैन से कोल इंटेंसिव या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑप्शंस हैं और यहाँ पर हमारे पास लेबर इंटेंसिव ऑप्शन है. सो अगर किसी बंदे की स्पेशलाइजेशन हो, उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो, सो ही विल गो विद दोज ऑप्शन जिसमें टेक्नोलॉजी अच्छी है या अबंडेंट. जो हमारे पास 3 हमारे पास रीजंस आए जिसकी वजह से हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं. आइदर दे आर expert in it, they learn by doing, or they have they have specialized resources, what we say, and the third is economies of scale. So अगर उनके पास कोई ऐसी resources हैं, कोल के abundance है और वो चीज़ मिल रही है, so they will go with A and C option और A option. अगर वहाँ पे कोल की abundance नहीं है, कोल कम आ रहा है लेकिन लोग काफ़ी हैं, तो they will go with the B option. So this is how they will choose. Which one should a firm choose? Firm will choose depend upon its own area, कि वो किस जगह पर जा रहा है, कि economies of scale को पसंद करेगा या उसकी resource की availability है वहाँ पर, और that's how they will specialize and they will choose among these 2 points. Similarly अगर हम technology की चॉइस को देखें तो what we can do next is कि we can make use the equation of cost wage into worker plus price in tons and in number of tons. So cost की जो हमारे पास known equation है wage into workers, rents, wage into हम कह सकते हैं उनकी wage into number of workers and price into उसका रेंट या नंबर ऑफ टन्स हम जितने ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा. ये हमारे पास टोटल है. इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास लेट्स सपोज कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने कोल ले लिया, ये ले लिया, इसके अलावा कोई और चीज़ है तो वो हम XYZ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं विद इट्स नंबर, वो हम इसमें डाल सकते हैं. तो हमारे पास तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएगा. राइट नाउ वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ फॉर 2 हमने किया. सो दिस इज़ हाउ जो हमारे पास कॉस्ट की इक्वेशन बनती है वो इस बेसिस पे आती है. अब अगर हम इसको देख लें कि वेज हमारे पास है $10
लेबर की वेज है पर डे की $10 है, और प्राइस हमारे पास कोल की जो प्राइस आ रही है वो 20 आ रही है. सो हाउ टू ड्रॉ दीज लाइंस, दीज आर कॉल्ड द आइसोकॉन्ट लाइंस. अगेन इट्स द सेम ग्राफ, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, दोनों के ऊपर हमारे पास इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये एरिया जो हमें शो कर रहा है ये आउटपुट शो कर रहा है. सो अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे. सो लेट्स सपोज हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है वेज हमारे पास 10 है और प्राइस 20 की आ रही है. अब हमने उस ऑप्शन को लेना है जहाँ पर हमारे पास कॉस्ट की मिनिमाइजेशन है, कम से कम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास आए. हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को हमने यहाँ पे मिनिमाइज करना है. सो हाउ टू ड्रॉ दोज लाइंस. अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए लेट्स सपोज हमने सारी की सारी अपनी रिसोर्सेज लगा दी हैं कोल के ऊपर, और सारा का सारा हम कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल हमारे पास लेट्स सपोज 40 की कॉस्ट है, और सारी की सारी रिसोर्सेज हमने लगा दी हैं 40 की कॉस्ट के ऊपर. सारी की सारी रिसोर्सेज हमने कोल को बाय करने के ऊपर लगा ली. कोई कोल की प्राइस क्या है 20. सो 40 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास क्या नंबर आया, इट्स 2. सो 2 यहाँ पर आ गया, हम वाई एक्सिस पे 2 ले लेंगे. सिमिलरली इन केस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, सो हमारे पास 40 टोटल बजट है, और हम कहते हैं कि हमने सारा का सारा रिसोर्स लेबर पे लगाया. लेबर की पेज क्या है 10. सो क्रॉस करेंगे तो 4 नंबर आ गया. सो इट मीन्स कि हमने इसको पहले ड्रॉ करना है इन लाइंस को. So at cost of 40, so we can, if we are not able to hire, we don't want to hire any other worker, we are just relying on technology, coal की amount पर, so we can purchase 2, and number of workers 4 हैं. So ये हमारे पास जो लाइन आ रही है ये कॉस्ट की लाइन आ रही है 40 की. इसी तरह से हम सारी की सारी ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन है हमारे पास 80 की, नेक्स्ट लाइन है 120 की, और उसके बाद है 150 की. अब इन डिफरेंट लाइंस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ऑफ द प्रोडक्शन के, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ P1 एंड P2. P1 पे अगर हम देखें तो हमारे पास, लेट मी इरेज द रेस्ट. ओके, अच्छा, P1 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो P1 को लेट्स सपोज, लेट मी टेक दिस स्मॉल पेंसिल. अच्छा, ये देखें अगर हम इसको मैप करें इधर और इधर, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है कोल का और वर्कर का. सो कोल और वर्कर का कॉम्बिनेशन, चूँकि हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, तो एक्स हमारे पास आ रहा है 2 और वाई हमारे पास आ रहा है 3. सो 2:3 का रेशो आ गया है. सिमिलरली पी को अगर हम देखें तो इट्स अबाउट 6 एंड दिस इज 1. सो 6:1 का रेशो आ रहा है. सो अगर हमारे पास, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, रिमेंबर द प्रीवियस स्लाइड, इन दोनों में अब डिसाइड ये होगा, यहाँ पर हमारे पास दिस पॉइंट इज एक्चुअली लेबर इंटेंसिव. यहाँ पे अगर उस इलाके में लेबर इंटेंसिव लेबर अवेलेबल है और कोल कोल नहीं है इतना अवेलेबल, सो द पीपल विल गो, द फर्म विल गो विद द पॉइंट P2. लेकिन अगर वहाँ पर कोल चीपली अवेलेबल है और लेबर हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है, या लेबर हम कोल हमारे पास चीपली अवेलेबल है, सो देन दे विल गो विद द पॉइंट 1 एंड एट द कॉस्ट ऑफ 80 पाउंड्स. सो 80 पाउंड्स की टोटल कॉस्ट पड़ेगी, और टोटल कॉस्ट 80 के ऊपर ही आपका काम हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज वी मूव टू 150, सो वी हैव दीज टू ऑप्शन Q1 एंड Q2. Q1 के ऊपर हमारे पास कोल इज 60 एंड 6 एंड और 3:6 का कॉम्बिनेशन है, एंड Q1 के ऊपर हमारे पास 5:5 का कॉम्बिनेशन है. इट मीन्स 1:1 का कॉम्बिनेशन है. सो यहाँ पर भी द फर्म विल चूज बिटवीन द technology intensive option as well as the labor intensive option. So this is how the firms mostly select between the two.
अब दीज आर, जैसे मैंने आपको बताया था, दीज आर कॉल्ड द आइजो कॉस्ट लाइन। मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ आइजो कॉस्ट लाइन। स्लोप हमारे पास जो मेजर हो रहा है दैट इज माइनस डब्ल्यू, minus is showing the negative slope and w by p wage over p है। so wage हमारे पास आ रहा है 10 और हमारे पास प्राइस जो आ रही है दैट इज 20, so it means it's 1.5 और it's 0.5 हमारे पास इसका स्लोप आ रहा है। so slope depends on relative prices। अब relative prices के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है। इस केस में चूंकि वेज हमारे पास 10 है और प्राइस 20 है, प्राइस ऑफ गोल्ड 20 है, सो स्लोप 0.5 आ रहा है, सबका 0.5 ही आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर हमारे पास इन केस वेज चेंज होती है या हमारे पास प्राइस ऑफ गोल्ड चेंज हो जाती है, देन देयर इज अ चेंज इन द स्लोप। लेट्स सपोज वेज हमारे पास ड्रॉप हो गई है टू 5 एंड प्राइस इज सेम एट 20, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12 20 के हिसाब से हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जी अभी स्लोप डिफरेंट है, वो डिफरेंट हो जाएगा। सो how it will be differentiated, how it will be then drawn। let's suppose हम कहते हैं कि ड्रॉप आ गया है वेज में। वेज हमारे पास अब करंट जो वेज है वो हमारे पास ड्रॉप हो गई है 5 से 10 पे चली गई है। तो रिमेंबर दिस वन, ये हमने कैसे बनाई थी, ये हमने की थी कि लेट्स सपोज कॉस्ट 40 है और 40 को हमने डिवाइड कर लिया था, हमने 10 के ऊपर डिवाइड किया था, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए थे 4। लेकिन अब क्या हुआ, अब चूंकि वो 5 पे चला गया, तो अब क्या होगा, अब 40 को हम डिवाइड करेंगे ओवर 5, तो क्या आएगा 8। सो इट मीन्स इसी ही पैसों के अंदर अब हमने क्या करना है, हम 8 तक जा सकते हैं। लेट्स assume कि कोल की प्राइस चेंज नहीं हुई, इट रिमेन द सेम, सो हाउ द स्लोप विल चेंज। सो अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर इट विल गो ऑन, यहाँ तक चला जाएगा। तो ये आपका, अब आपका स्लोप इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट उतनी है, 40 ही बढ़ रही है, स्लोप चेंज हो गया, इट मीन्स यू हैव चीपर लेबर अवेलेबल। अब अगेन स्लोप चेंज हुआ, तो स्लोप को चेंज करने का क्या तरीका है, वर्ट इट्स 5, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 10/20 इट्स हाफ और 20/10 इज इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे 5/20 करेंगे तो विल गेट द आंसर कि हाउ इट विल कम। सो यहाँ पर स्लोप आपका डिफरेंट चेंज, दिस इज हाउ वी गो विद द स्लोप डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्राइसेस। सो रिलेटिव प्राइसेस के ऊपर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनके रेशो के ऊपर कि क्या रेशो आ रहा है। जो रेशो चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली स्लोप चेंज हो जाएगा। एक और केस हम, अब आपका टास्क ये है कि आप यहाँ पे इसका प्राइस चेंज करें। लेट्स सपोज प्राइस पहले आ रही है $20, प्राइस अगर आती है हमारे पास $10 तो क्या आएगा स्लोप। प्राइस अगर हमारे पास आती है 40 तो फिर क्या स्लोप आएगा। इन दोनों के ऊपर आप रिलेटिव प्राइसेस आरपी कैलकुलेट करें, ये आपका टास्क है। ना यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट, ये भी इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, ए बी एंड सी टास्क है। अब चूंकि हमारे पास दिस इज आवर बजट, 80 का हमारे पास बजट है। ए पॉइंट है इट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ और आउटसाइड द आइजो कॉस्ट लाइन। सो टेक्नोलॉजी ए, हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 1, कोल रिक्वायर्ड है 60, टोटल कॉस्ट है 130 की। टेक्नोलॉजी बी में हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स आर 4 और हमारे पास अमाउंट ऑफ कोल इज 20 एंड द cost is 80. Similarly in case of E it's 120 और हमारे पास ये combination है। So keeping in view के हमारे पास wage rate और price of coal same है। So which technology we will be adopting? We will definitely go with 180 if we have a budget of 80 and we want to minimize the cost. So minimum cost के ऊपर हमारे पास यही option available है, ये है। और अगर हम जाते हैं टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव या कोल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरफ, तो फिर हमारे पास कॉस्ट बढ़ जाती है 130 और 120 के बीच में।
अगर हम 120 लें तो वहाँ पे लेबर ज़्यादा होगा, कोल कम प्रोड्यूस होगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. सिमिलरली हमारे पास in case of A we'll hire just one worker but we have to buy more and more of coal, so कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी. कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी सेटअप की है उसको सेटअप करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट चाहिए, तो वो जब पहले लगाएंगे और उसके बाद हमारे पास वो आउटपुट आएगा. सो दिस इज हाउ पीपल थिंक. A change in relative price, जो मैंने अभी आपको बताया कि how it works. So a change in price, so if the price cost, so and the wage rate remains the same, so it's the same slope. पहले हमारे पास आ रहा था, let's suppose पहले आ रहा था 2 to 4 की फॉर्म में, और अगर हमने क्या किया कि प्राइस हमारे पास डिक्रीज हो गई है 5 पे चली गई है और वेजेस जो हैं वो 10 पर ही हैं, तो दिस इज हाउ इट वर्क. सो 40 के हिसाब से हमारे पास ये वाला स्लोप आ रहा है. कोल का 8 की तरफ चला गया और ये सेम रहा है. वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोल का सेम रहा और हमने वेज का फॉल कर दिया था, तो वो यहाँ पे स्लोप आगे चला गया था. सो दिस इज़ हाउ वी नॉर्मली वर्क, कि ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज़ के अंदर किस तरह से स्लोप चेंज होता है. सो नाउ दिस इज़ योर टास्क कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, प्राइस ऑफ कोल गिर जाए 5 पे चली जाए और वेज जो है वो 10 पे चली जाए, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्लोप आइसोकॉन्ट कर्व हमने किस तरह ड्रॉ करनी है. वी हैव टू ड्रॉ डिफरेंट iso cost curves with this data, with the given data. और at cost कौन कौन सी कॉस्ट है? 40, 80 और 50, तीन है, तो तीन बनेगी ये वाली 40, 80 इन 40, 80 और 50 इन पर करना. To draw, this is how we मैंने अभी आपको बता दिया है, और ये उसकी इक्वेशन है कि किस तरह हम उसके रिलेटिव प्राइसेस कैलकुलेट करते हैं. ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है. सो वी हैव टू री राइट, और इसमें पूरे को पूरा इसका आपको स्लोप का बता दिया है कि स्लोप हम किस तरह ड्रॉ करते हैं. सो C इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस पी आर. अगर हमने कैलकुलेट करना है आर की आर के लिए हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज आर. R L is W is wage rate, और L is number of labor, P is price, और R is जो number of coal है वो हमने प्रोड्यूस किया. सो कोल हम अगर लेंगे तो हमने किस तरह, अगर लेट्स सपोज हमने अमाउंट ऑफ कोल जो हम परचेज कर रहे हैं वो हमने आइडेंटिफाई करना है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे इस फॉर्म में, सो वी विल गेट दैट आंसर. और सिमिलरली इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास माइनस डब्ल्यू बाई पी जो है, this is actually showing the slope of the curve, isocont curve, and it is a negative sign because it's negatively sloped, or it's also proved in the equation. इसको प्लस माइनस द नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम लेके गए हैं, इसको हमने इधर छोड़ के डब्ल्यू एल को नेक्स्ट दूसरे राइट हैंड साइड की तरफ मूव किया, सो दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव डब्ल्यू एल. अब हम आर को छोड़ देंगे, पी से सारी की सारी इक्वेशन डिवाइड करेंगे, तो जब पी से करेंगे तो सी बाई पी आएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा. दिस इज हाउ इट इज प्रूव्ड. Now you have the question to choose the correct answer. So figure shows different technologies for producing 100 meter of cloth. Based off this information, what you can conclude? Technology D is more energy intensive than technology C. B dominates technology D. A is the cost minimization. So ये questions आपने खुद ही करने हैं. अब ये जो मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसके अगेंस्ट आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस करके देख लेने हैं कि किस तरह से इसके आंसर क्या हो सकते हैं.
This is also another activity. Suppose the wage is £10, but the price of a coal is only 5. What is the relative price of labor? This is how you have shown you how to calculate it. Now you have to calculate it from all the one of the diagram with the number of workers on horizontal axis. Draw a quant line to show the combination. ये सारी की सारी चीजें वहाँ पे given है. So this is all you have to do it. ये हम explain कर चुके हैं. So it's kind of an explanation if you want to read from the slides. Now industrial revolution, coming to industrial revolution in Britain. अगर हम industrial revolution देखें ब्रिटेन में 1800 के अंदर, so what happened to the relative price of energy? The price of labor relative to energy was very high in Britain for two reasons. दो reasons थी जिनकी वजह से हमारे पास ब्रिटेन के अंदर बहुत सी हाई थी लेबर की प्राइस. English wages were higher than the wages elsewhere and coal was cheaper in the coal rich Britain. दो रीज़न ये थी कि इंग्लिश की वेजेस ज़्यादा थी बनिस्बत किसी और कंट्री के अंदर. यहाँ पे देखिए लंदन, एम्स्टर्डम, फ्रांस, पेरिस, बीजिंग, इन सब में देखिए इन सबसे ज़्यादा थी. एक तो वो रीज़न वो ब्लैक डेथ की थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो गई थी, और दूसरा ये था कि इनके पास कोल चीपली अवेलेबल था. तीसरा उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्शन लाइन नहीं थी जिसकी वजह से they were relying more on the labor. So that's why they are getting more and more. उनकी डिमांड ज़्यादा थी ना, जब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उनकी वेजेस भी ज़्यादा हो गए. सो इंग्लैंड में डिमांड ज़्यादा थी वेजेस लेबर की, क्योंकि बंदे कम थे और उनके पास टेक्नोलॉजी भी इतनी इंटेंस नहीं थी ताकि वो चीपली यूज़ करें, कोल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं थी ताकि वो उस हिसाब से अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकें. So these were the two reasons. These are the two reasons of Britain high energy price of labor relative to energy. They were high. अब अगर हम देख लें अपने पिछली ही आइसो कॉस्ट कर्व में देखें तो हाउ कैन वी, हमने दो पॉइंट उसमें देखे थे, एक मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के लिए तो हमने डिफरेंट आइसो कॉस्ट लाइंस ड्रॉ कर दी थी. अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जिस प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू ये है कि अगर हम स्विच करें फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, स्विच व्हाट इज द चेंज इन द रेवेन्यू एंड चेंज इन द कॉस्ट. So if we move on from point B to point A, remember the previous slide, point B नीचे था और point B ऊपर की तरफ चला गया था. So change in revenue is from 40 minus 50. So change in revenue is 10. So if the change in revenue is 10, so we will definitely go with the option of हमारे पास अगर सॉरी चेंज इन कॉस्ट हमारे पास 40 से 50 पे चली गई तो कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा हो गई. सो कॉस्ट अगर हमारे पास ज़्यादा हो गई, so in this case economic rent for switching from B to A is $10 per 100 meters of road, which is cost reduction made possible by the new technology. So new technology की वजह से हमारे पास cost में reduction आ गई है. अगर cost में हमारे पास reduction आ गई है, so what we'll prefer for going towards the this cost. अब ये cost में reduction इन्होंने कैसे calculate की? इसने same वही procedure उठाया है जो हमारे पास कॉस्ट की इक्वेशन थी उसमें हमने सेम देखा है कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, और फिर हमने उसको ऐड किया है इट वाज W इनटू L, वेज इनटू लेबर, सॉरी प्राइस इनटू नंबर ऑफ कोल्स और वेज इनटू लेबर, इसके हिसाब से किया है. सो प्राइस इनटू नंबर, यहाँ पर कॉस्ट हमने टोटल कॉस्ट की फॉर्म में कर ली है कि कितना कॉस्ट आ रहा है. रेवेन्यू अगर हम ये देख लेते हैं, चूँकि हमने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास 1000 meters of cloth produce हो रहा है. So take it's there is no difference between the 2 points B and A. वो 100 मीटर ही आ रहा है तो रेवेन्यू सेम होगा, इसलिए इसको जीरो टर्म कर दिया है. कॉस्ट में क्या आ जाएगा? कॉस्ट में हम चेंज देख लेंगे कि पहले इनिशियली पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास कॉस्ट आ रही थी 40 और पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास कॉस्ट आ गई 50. सो डिफरेंस आया हमारे पास 10 का. सो इन दिस केस इकोनॉमिक रेंट फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम बी इज टू it's 10. So that's why
people will shift to the technology intensive proportion, क्योंकि लेबर में कॉस्ट आपकी यूज हो जाएगी, कम हो जाएगी. This is actually what the explanation of what we've just done. यहाँ पे हमने अब टेक्नोलॉजी ए की तरफ अगर हम चले जाते हैं, so why we are moving towards the technology A, and it's actually it's not available abundantly, and whoever will be adopting it first or respond karega to the new technology, so they will have the incentive to increase the profit. So entrepreneur, and they will, and this adopter, this first adopter is termed as the entrepreneur. So entrepreneur is a person who creates or an early adopter of new technology, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी. सो कोई सा भी बंदा जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, नई अपॉर्चुनिटी को टैप इन करता है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि ही इज़ एन अडॉप्टर, ही इज़ एन इनोवेटर, और वो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है. सो जब वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, सो उसके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे कि ये इसका इनोवेशन रेंट है. इनोवेशन रेंट को हम हमेशा एट टाइम्स हमें वी आर ऑल्सो term it as competitors rent, क्योंकि he is the one who have introduced that phenomenon of innovative rents, और entrepreneur के phenomenon को उसने boost introduce कराया था. जब इनोवेशन रेंट्स अगर बहुत टाइम पे नहीं रहते, क्योंकि नई जैसी इनोवेशन आती है लोग उसको जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं और अपनी अपनी तरीके से इनोवेशन पे काम करना शुरू कर देते हैं. तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर और फर्म्स को देखें, और फर्म्स अगर उसको अडॉप्ट करती हैं, तो फिर आपका इनोवेशन रेंट, कॉस्ट की रिडक्शन या इनोवेशन रेंट ख़त्म हो जाते हैं. सो द अर्ली यू अडॉप्ट, so the early you will get the profit. Obviously risk is there, but you will earn profit. The firm that's stuck to the old B technology will be unable to cover the cost at the new lower price of foreclosure, so they will go bankrupt, as suggested by um, Joseph's computer, and this is called creative destruction. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में चला जाता है. वो सोच रहा है कि नहीं ये पुराने पे काम चलेगा, तो पुराने पे काम नहीं चलता है, हमेशा नई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है. हम कहते हैं कि हमें वक्त के साथ साथ जो हम कहते हैं कि हमें चलना पड़ता है, तो वो इसी वजह से ही है. सो अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे अपने आप को नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सो वील बी देयर विल बी अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. अगर आप हम दुनिया में ही देख लें या बहुत सी फर्म्स में देख लें, तो वी हैव बिन टू डिफरेंट, वी इन द रियल लाइफ हमारे पास बहुत सी फर्म्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ये काम हो चुका है. अगर पुरानी पुरानी चीज़ों पे चलते रहें, सो दे विल नॉट अर्न मोर प्रॉफिट्स. So Joseph's computer, named from the process by an old technology, and they've adopt, and if they do not adopt or swept they by the new, because they cannot compete in the market, and this due to failure of unprofitable firm is creative, but it releases labor and capital goods for use in new combinations. So this is how creative destruction is as well Joseph's computer. इस बुक के अंदर इसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पे ये पूरी स्टोरी गिवन है. So I'll recommend to read it and go through it. Similarly, we also have a video over here that is explaining the evolutionary economics, technology, population and growth. So normally go through it, and sorry, this is kind of it's thought of an economist. ये इसको आप जाएं और यहाँ पे इसको रीड करें. So you will come about the Joseph's computer. He was actually he have introduced the concept of modern economics from 1883 से 1950 तक, and he introduced the concept of entrepreneur and innovation rents. Now we have again activity at the end of the session. So this is how आपने बताना है, read the following statement and choose the correct answer कि what is normally entrepreneur के बारे में है कि how is entrepreneur is, who is entrepreneur and which one do you choose.
अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो वी कैन सी द टू कंट्रीज इंग्लैंड एंड फ्रांस दे आर क्रॉसिंग वन अनदर. इंग्लैंड इज गिवन बाय द ब्लू लाइन एंड फ्रांस बाय द पिंक लाइन. सो अगर हम wages consider करें relative to energy as well as capital goods, so these are the different thing. Initially from 1500 to kind of a mid of 1600 तक ये तकरीबन सेम ही चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से देर इज़ अ क्रॉस. एंड अब हमारे पास 1650 के 40 के बाद जो इंग्लैंड है उसमें इंक्रीज कर गया है कर्व, वेज रेट हाई हो गया है, जबकि हमारे पास फ्रांस के अंदर वेज रेट डिक्लाइन कर गया है. सो व्हाट इज़ दैट रीज़न? सो द रोज इन द 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन कंपेयर टू अर्लियर हिस्टोरियन पीरियड, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव कॉस्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं. वेयर एज हायर इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी देन एल्सवेयर, जो हमने पिछली भी बात की थी और उसकी हमने रीजंस भी बताई थी कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हो रहा था. दैट वाज फर्स्ट वाज बिकॉज ऑफ द चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट कोल, और दूसरा था कि लेबर हमारे पास वहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उनकी वेज रेट ज़्यादा थी. दिस इज economic historian Bob Allen, and he has also addressed the question why Britain industrialization, why Britain has industrialized and when others do not. So what was that reason? So उसकी reason ये बताने की कोशिश करे कि what was it. So mostly जो industrialization ब्रिटेन में हुई थी, it's because of the availability of coal, क्योंकि उनके पास कोल था, टेक्नोलॉजी थी. तो जितना ज़्यादा कोल था और चीपली अवेलेबल था, तो जब चीपली अवेलेबल थी एनर्जी, जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी की ज़्यादा इन्वेंशन हुई, टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, तो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर इनका ज़्यादा हुआ. दैट्स वाई इनका रिव्यूज रेट भी था. तो एक रीज़न हमने पॉपुलेशन की पेश की थी, यहाँ पे दूसरी रीज़न टेक्नोलॉजी की भी है और चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की भी है, क्योंकि वो अबंडेंट प्रोड्यूस कर पा रहे थे और प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लेबर इन्हांस कर गई. सो जब प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस कर गई, सो दैट्स वाई दे their wages were increased. So I'll recommend you go through the video and you will be able to answer why Britain industrialized. So this sort of question can come in papers कि हाँ why Britain industrialize and others don't. So what are your reasons? So you have to give a few reasons. So उसके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है. So you must know, you can argue with it. Britain but not France. So ये question है which Bob Allen, an economics historian, explain theory of why the industrial revolution occurred, when and where it is. So summarize करें Allen claim using the concept of economic trend and ceteris paribus assumption, and what other factors can explain the rise of. So this is your assignment and you have to do it. So जब आप Bob Allen की वीडियो देखेंगे, so then you will be able to summarize the Allen's claim and the factors, or the important identify the factors that are here to explain the energy intensive technology. So यहाँ पर अगर हम देखें, हमने सेम आइसो कॉस्ट कर्व्स को अगर हम ले लें, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1600 में हमारे पास जो आइसो कॉस्ट कर्व है दैट इज़ ऑफ बी, और 1700 में आइसो कॉस्ट कर्व हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर चली जाती है. सो ए पॉइंट पे चले जाने का वही मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स और टन्स जो है उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन डिफरेंट फॉर्म में आ रही है. तो वही हम 100 मीटर ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. सो अगर हम बी के ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है 1600 में, सो इफ फर्म यूजेस बी देन द नो इंसेंटिव टू डेवलप टेक्नोलॉजी, एंड वो हमारे पास इसी लाइन के ऊपर आएगा, जो हमारे पास एच जी की जो लाइन है. लेट्स सपोज ये हमारे पास एच जी की लाइन आ रही है. अगर हम इसके ऊपर जाना है तो बी हमारे पास आ रही है, जो बोथ लाइन को क्रॉस कर रही है. लेकिन अगर हम इसके ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास ये वाली वो स्टीप आइसो कॉस्ट कर्व है, जिसमें लेबर टू कोल इज हाई एंड ए टेक्नोलॉजी नाउ लोअर कॉस्ट देन द बी टेक्नोलॉजी. कॉस्ट इसकी कम है बनिस्बत इसके. So that's why how Britons have adopted.
द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी को इन्होंने यहाँ पे शो किया है ए एंड ए बार एंड बी एज वेल एज सो फर्दर टेक्नोलॉजी द स्प्रेड ऑफ सो हमारे पास जो रीजंस आ रही हैं ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी and why Britain has higher wage rate, why they have growth. So these are the different reasons कि whether technological progress हुई, wage rate grow करी और हमारे पास energy की prices जो हैं वो decline कर गई. So these are the reasons that people move toward the a bar or at the least cost curve. So energy or labor intensive, where the relative price of labor is high, the energy intensive technology is chosen. Where the relative price of labor is low, the labor intensive is chosen. B is improvement in technology. Improvement in cloth making technology occur, resulting in a new technology labeled at A bar, and technology uses only half as much as of energy as worker produces 100-meter clothes. So the new technology dominates A, this one. Similarly, A star technology is cheaper for both A and B, both in the countries where wages are relatively high. So low wage expensive energy is produced. So यहाँ पर भी वही बातें हो रही हैं दोबारा A and B के कौन सा हम पॉइंट चूज करें. So कंपेरेटिव टू ए एंड ए बार में अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है जिसमें कोल भी कम यूज़ हो रहा है और लेबर भी कम यूज़ हो रहा है. सो पीपल विल प्रेफर दैट. यहाँ पर कोल ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऑल्दो लेबर कम यूज़ हो रहा है. सो इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर हम करेंगे तो वील गो विद द हायर एंड टेक्नोलॉजी जिसमें आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी. सिमिलरली फ्यूल की कॉस्ट ये डिफरेंस आ जाएगा ना. ये तो सेम आ रहा है तो इसके दरम्यान में जो 1 2 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा तो इस हिसाब से आपका ये वो इकोनॉमिक रेंट बनेगा. सिमिलरली अगर हम ए और बी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इधर जो हमारे पास है कोल आपके पास कम है लेकिन लेबर आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो इट्स 80 और यहाँ पर आपकी 40 बन रही है. सो ये क्लियर डिफरेंस है यहाँ पे 40 का. So therefore people will move towards A or A star. यहाँ पे अगेन क्वेश्चंस हैं जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रिटेन की वजह से कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रीवियस डायग्राम चूज द करेक्ट आंसर. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सो माल्थीजियन ट्रैप की जो हमने बात की तो यहाँ पर 1800 तक हमने कहा कि ये तकरीबन सेम ही चलता रहा है. सो पीपल वर इन द ट्रैप. Why they were in trap we have discussed it in detail because there was no technological innovation, no energy was available. उसके बाद technological innovation जब हुई और energy available हुई तो wage rent, real wage rent की भी रियल वेज रेंट भी इंक्रीज हुए, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, रियल वेज रेंट भी इंक्रीज हुए थे क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही थी. सो द रीज़न वाई इट हैज़ enhanced because of the improvement in technology. अच्छा इसको इसी माल्थेसियन ट्रैप को सुरेश नंदू ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर. सो आई रिकमेंड कि आप जाएं और ये वीडियो देखें. और इसमें जो फैक्टर्स उसने बताए हैं डिफरेंट फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हाउ दिस माल्थेसियन ट्रैप वाज चेंज्ड. सो ये वीडियो आप देखें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. दैट्स इट फ्रॉम नाउ. अल्लाह हाफिज़.